commerce element. In today's session, we will be discussing about different cases to calculate amount of interest on drawing. आप बोलोगे लास्ट सेशन में ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करी थी, इस सेशन में हम केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस करेंगे. तो हमने क्या हॉस्पिटल खोल के रखा है? ऑफ कोर्स नॉट, हॉस्पिटल नहीं खोला, बट स्टिल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टनर्स स्टाइल ऑफ मेकिंग ड्राइंग्स. लाइक किसी पार्टनर की हैबिट होती है वो रेगुलरली एवरी मंथ कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा. किसी पार्टनर की हैबिट होती है वो 3-4 महीने में एक बार अमाउंट विड्रॉ करेगा. किसी और पार्टनर की हैबिट में भी होगी कि वो रैंडमली कभी भी पूरे साल में कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करेगा. बिकॉज डिफरेंट पार्टनर्स की डिफरेंट हैबिट्स होती है ड्राइंग्स करने की. उनके ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे. And that is why today we will focus on all such cases जिसमें हम different style वाले drawings के amounts of interest on drawings calculate कर पाए. हम कोई hospital cases को check करने नहीं जा रहे हैं, हम इन cases को accounts में ही study करेंगे. So without wasting time, come let's proceed. Now interest on drawing calculate करने के लिए with all the cases there is one common formula. It says that interest on drawings is equals to total drawings into rate of interest. में भी आपको दिया होगा interest on drawing 12% per annum के हिसाब से लेना है, 6% per annum, 10% per annum. Whatever rate of interest is given, that rate upon 100 into average period upon 12. ये average period क्या होता है? जैसे जैसे हम cases में आगे बढ़ेंगे, you will understand that. So remember, for all the cases we will be discussing, the formula will remain common. In the end, I will tell you, apart from just finding the amount of interest on drawing, based on this formula, आपको कैसे कैसे MCQ में questions आएंगे. फिलहाल interest on drawings is equals to total drawings into rate of interest on drawing into average period upon 12. For all the cases that we will be discussing today, we are taking interest on drawings rate at 12% per annum. Now let's dive into different cases. First case says that if dates of withdrawals are not given. For example, A withdraws 10,000 during the year. During the year मतलब कब withdraw कर रहा है? जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, दिसंबर में, when? Dates of withdrawals are not given and you are asked to calculate interest on drawing at the rate of 12% per annum. तो हम कैसे calculate करेंगे? It will be interest on drawings is equals to total drawings which is 10,000 into rate of interest on drawing which we are taking as 12% per annum into average period. Now remember this, whenever you have the words during the year, partner is making drawings of so and so amount during the year. During the year कब वो नहीं बोला, simply during the year, then the rate of interest, the average period will be taken as 6 months always. For a safer side, आप 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो, उसने कभी भी विड्रॉ किया हो, मे बी जनवरी में किया हो, मे बी दिसंबर में किया हो, बिकॉज विड्रॉवल्स की डेट स्पेसिफाइड है. सेफर साइड एवरेज पीरियड को 6 मंथ्स लेके उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वसूल कर लो. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ वी कैलकुलेट इट विल बी 600 rupees in case when dates are not given. Second case is product method. See the example. B withdraws 5,000 on 1/4/23, 10,000 on 1/7/23, 5,000 on 30/9/23 and 2,000 on 31st March 24. Now this partner has the habit of randomly withdrawing any amount at any point of time. उसको जब मजा आए तब अमाउंट विड्रॉ किया है, जो मजा आए वो अमाउंट विड्रॉ किया है. सो फिर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला,
हम पहले उसका अमाउंट निकालेंगे। कैसे? प्रोडक्ट मेथड यूज करके। सपोज उसने 5000 रुपीज विड्रॉ किए on 1/4/23. Your year is getting over on 31st March 24. So 1/4/23 से लेके 31st March 24 तक 5000 रुपीज 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहे। देन अगेन उसे मजा आया तो उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किया 1/7 को। सो ड्रॉइंग्स ऑफ 10,000 1/7, 7th मंथ के बिगिनिंग में उसने अमाउंट विड्रॉ कर दिया। सो उसका 10,000 अमाउंट विड्रॉन 7th मंथ में, 8th 9th 10th 11th 12th 1st 2nd and 3rd, because the year is getting over on 31st March. So उसका 10,000 अमाउंट 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहा। देन उसने 5,000 रुपीज विड्रॉ किए ऑन 30th ऑफ September। 30th September मतलब September ऑलरेडी इज ओवर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5,000 का अमाउंट उसका 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहा। सो 5,000 इंटू 6, 2,000 रुपीज उसने 31st मार्च 24 को विड्रॉ किए जब ईयर खत्म हो रहा है। सो 2000 पे फिलहाल हम इस साल उसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको जाने देंगे। एक्सेप्ट दैट दिस 3 अमाउंट्स ऑफ विड्रॉल हम जितने नंबर ऑफ मंथ्स विड्रॉल रहे उतने नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो 5 into 12 it is 60,000, 9 into 10 it is 90,000 and 5 into 6 it is 30,000. Total product हुआ 1,80,000. Now we will calculate interest on drawing. Now this time instead of total drawings we will be taking total product, that is 1,80,000 into रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने बोला हमारे पास 12% लेंगे। सो 12% इंटू एवरेज पीरियड। जब भी कभी कोई पार्टनर इस तरह से रैंडमली कुछ भी अमाउंट कभी भी विड्रॉ करता है तो ऑलवेज एवरेज पीरियड यू विल टेक फॉर 1 month ओनली। सो एज ऑफ दैट इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग्स विल बी 1,800 रुपीज। Moving on to the third case, when fixed amounts are withdrawn at fixed period as well. Now कोई पार्टनर every month withdraw करेगा, every month की first date को amount withdraw करके जाएगा। कोई पार्टनर every quarter amount withdraw करेगा, every quarter के say suppose 15th date को he will withdraw the amount। किसी पार्टनर की हैबिट होगी कि वो पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है बट 6 महीने में एक बार, maybe in the beginning of 6 month, maybe in the mid of 6 month or maybe at the end of 6 month। बट उसे जो भी सिस्टम विड्रॉवल का पकड़ा है टिल दी एंड वो वही सिस्टम से वेदर मंथली, वेदर क्वार्टरली और वेदर हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है और दैट टू ऑन सेम डेट। दैट इज व्हेन पार्टनर्स आर विड्रॉइंग फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड पीरियड। इन दिस केस बिकॉज हर पार्टनर का फिक्स्ड पीरियड अलग अलग होगा, मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली, मे बी हाफ ईयरली, उसमें भी मे बी ऑन फर्स्ट डेट, मे बी ऑन मिड ऑफ द मंथ क्वार्टर या हाफ ईयर, मे बी ऑन द लास्ट डेट ऑफ मंथ क्वार्टर या हाफ ईयर। इतने सारे कॉम्बिनेशंस और हमारा बेचारा एवरेज पीरियड एक। तो एवरेज पीरियड को दिस टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी हैव वन न्यू फॉर्मूला। एवरेज पीरियड इन दिस केस कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग। पार्टनर अपने साल में पहला ड्रॉइंग कब करता है, उसके बाद ईयर एंड तक हाउ मेनी मंथ्स दैट फर्स्ट विड्रॉन अमाउंट रिमेन्स विड्रॉन प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द लास्ट ड्रॉइंग्स। इस साल में जब भी कभी वो लास्ट विड्रॉवल करेगा उस दिन से लेके लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31st मार्च तक कितने मंथ्स हुए, दैट विल बी नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट डेट अपॉन 2। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो अपने माइंड में। वंस वी पुट द थिंग्स इनटू फॉर्मूला द थिंग्स विल बी क्लियर।
So keeping in mind the formula to calculate average period in case when fixed amounts are withdrawn at fixed period. Let's see the examples. Suppose A withdraws 2000 on first date of every month throughout the year. और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है. So interest on drawings. In this case, A 2000 withdraw कर रहा है first date of every month. First time 2000 withdraw करेगा 1st April, 1st May, 1st June like that. So 2000 rupees throughout the year withdraw करेगा. 2000 rupees वो 12 बार withdraw करेगा. So his total drawings will be 2000 into 12, 24,000. Rate of interest on drawing, we said that we will be taking at 12% per annum. In this case, average period हम कैसे निकालेंगे? Suppose our year has starting with April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb and March. वो 1st April को फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ करेगा 2000 रुपीज का. सो एज ऑफ दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉवल 1st April को करा. 1st April से पूरा साल उसका फर्स्ट ड्रॉइंग वाला अमाउंट विड्रॉल रहा. सो नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉवल इन दिस केस विल बी 12 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट विड्रॉवल. वो हर बार फर्स्ट डेट को विड्रॉ करेगा. उसका लास्ट ड्रॉइंग 1st मार्च को होगा. 1st मार्च से 31st मार्च. नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट विड्रॉवल दैट इज 1 month upon 2. So 13/2. In this case, the average period will be 6.5 months. So it will be 6.5 upon 12. एवरेज पीरियड के लिए ये कैलकुलेशन किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 12 will remain as it is. So if you cut this, you will have some amount. I am writing 1. In comment section, reply that what will be the amount of A's interest on drawing. Now second case, B withdraws 5000 at the mid of every quarter. There are 4 quarters in a year. 3 months के 4 quarters. So B 5,000 rupees every quarter के mid में withdraw कर रहा है. In that case, we are supposed to calculate interest on drawings. 5,000 4 times withdraw करेगा every quarter में. So total drawings will be 20,000. The rate of interest 12% and अभी देखते हैं एवरेज पीरियड हमारा कैसे आता है. देयर आर 1 set of 1 quarter, second set of 2nd quarter, 3rd quarter and 4th quarter. एवरी क्वार्टर में मिड 15th को ही इज मेकिंग ड्रॉइंग्स. सो मे बी फर्स्ट ड्रॉइंग वो अप्रैल मे के 15th को करेगा. We want number of months from first drawings. मई के 15th के बाद उसका अमाउंट मार्च के 31st तक विड्रॉल रहा. मई 15 मतलब हमने 12 मई से 1.5 महीना निकाल दिया. सो 15th मई से लेके 31st मार्च तक his amount remain withdrawn for 10.5 months plus नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग्स. लास्ट क्वार्टर ये है. लास्ट क्वार्टर के मिड में ही इज मेकिंग द ड्रॉइंग्स. सो ही माइट बी मेकिंग ड्रॉइंग्स ऑन 15th Feb. 15th Feb से लेके 31st मार्च तक उसका लास्ट अमाउंट विड्रॉन रहा 1.5 months तक अपॉन 2. सो इट विल बी 10.5 प्लस 1.5 12/2. In this case, the average period will be 6 months. So 20,000, 12% for an average period of 6 months. We will be calculating the interest. Cut this. फिर जो भी amount आएगा
that amount will be interest on B's drawing when he is making drawings of 5,000 fixed amount, fixed period, which in this case is mid of every quarter. I am writing 2 over here so that in comment section you tell me the answer for this thing. Moving on further, C withdraws 10,000 on the last date once in 6 months. हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ्स खत्म होते हैं उसके लास्ट डे पे ही इज मेकिंग ड्रॉइंग्स. सो इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हिज टोटल ड्रॉइंग्स विल बी 6 मंथ्स के 2 सेट्स होते हैं ईयर में. सो 10,000 6 मंथ्स के एंड में विड्रॉ करेगा, 10,000 6 मंथ्स दूसरे 6 मंथ्स के एंड में विड्रॉ करेगा. सो हिज टोटल ड्रॉइंग्स विल बी 20,000. The rate of interest on drawing we are taking as 12%. Again average period. कैसे find करेंगे? Using this formula. So number of months from first withdrawal. अगर वो 6 months के last date पे withdraw कर रहा है, so this is the set of first 6 months and this is the set of second 6 month. वो first 6 month के last day पे withdraw करेगा 30th सितंबर को. 6 मंथ्स खत्म हो गए, उसके बाद उसने फर्स्ट ड्राइंग किया. सो 30th सितंबर से लेके 31st ऑफ मार्च तक इज अमाउंट रिमेन विड्रॉन फॉर 6 मंथ्स. सो नंबर ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉवल 6 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट विड्रॉवल. वो लास्ट विड्रॉवल दूसरे सेट ऑफ 6 मंथ्स के लास्ट डे पे करेगा. सो लास्ट विड्रॉवल्स वो 31st मार्च को करेगा. हमारा साल ही खत्म हो गया 31st मार्च, तो उसके बाद एटलीस्ट इस साल में कोई नंबर ऑफ मंथ नहीं बचा, सो 0 अपॉन 2. सो इट विल बी 6/2. इन दिस केस आर ड्रॉइंग्स एवरेज पीरियड विल बी 3 months. सो 3/12. अगेन इफ यू कट इट, जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी आंसर ऑफ इंटरेस्ट ऑन C's drawing in case when he is making 10,000 fixed amount का drawings, fixed period, that is last date of every 6 months. I am writing 3 in comment section. Reply the answer for interest on C's drawing 3 करके. Now आप बोलोगे कि हर बार क्या हमें ये एवरेज पीरियड निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? एक तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी फाइंड करो, उसके फॉर्मूला में थिंग्स को पुट ऑन करो, अगेन दूसरा फॉर्मूला लगा के क्या हमको एवरेज पीरियड भी हर बार फाइंड करना पड़ेगा? तो नो, देयर इज वन हैक, देयर इज वन शॉर्टकट. हियर इज अ टेबल जिसके बेसिस पे वंस और ट्वाइस इफ यू हैव अ ग्लैंस एट इट, आपको एवरेज पीरियड याद रह जाएगा. सी द टेबल इज अ 2D मॉडल. हियर टाइम पीरियड इज गिवन. स्टार्टिंग में अगर पार्टनर विड्रॉ करता है, मिड में करता है कि एंड में करता है. पार्टनर मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है या हाफ ईयरली ड्राइंग्स कर रहा है. अगर पार्टनर मंथली ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या वो खाली 6 मंथ्स के लिए कर रहा है? डिपेंडिंग अपॉन दीज बेसिक्स यू हैव वन टेबल टू रिमेंबर. अगर पार्टनर मंथली विड्रॉवल कर रहा है और एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो फिर आप एवरेज पीरियड कैसे लोगे? 6.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड लोगे. अगर पार्टनर मंथली विड्रॉवल कर रहा है और मिड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो आप एवरेज पीरियड क्या लोगे? 6 मंथ्स लोगे. अगर पार्टनर मंथली विड्रॉवल कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो आप एवरेज पीरियड लोगे 5.5 मंथ्स. सेम वे अगर पार्टनर की हैबिट है वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में तो एवरेज पीरियड 7.5, क्वार्टर के मिड में एवरेज पीरियड 6, क्वार्टर के एंड में एवरेज पीरियड 4.5. अगर पार्टनर की हैबिट है वो हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है, सो हाफ ईयरली स्टार्टिंग ऑफ हाफ ईयर विड्रॉ कर रहा है, योर एवरेज पीरियड विल बी 9. हाफ ईयर के मिड में विड्रॉ कर रहा है, योर एवरेज पीरियड विल बी 6. हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो योर एवरेज पीरियड विल बी 3. मंथली विड्रॉवल्स तो कर रहा है बट ओनली फॉर 6 मंथ्स. देन स्टार्टिंग ऑफ मंथ विड्रॉ कर रहा है, योर एवरेज पीरियड 3.5.
मिड में कर रहा है तो 3 एंड एंड में कर रहा है तो 2.5. वन थिंग यू कैन क्विकली रिमेम्बर, मिड में जब भी कभी विड्रॉ करेगा पूरे साल, मिड वाला चाहे वो मंथ हो, चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, एवरेज पीरियड विल बी 6. So based on this formula only we are having this table, so that every time आपको एवरेज पीरियड एटलीस्ट निकालने के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े. That is why this table. स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन हैव MCQ ऑल्सो. सो हर बार जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला को यूज करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही कैलकुलेट करो. मे बी इन MCQ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट दे दिया है. बेस्ड ऑन दिस अमाउंट गिवन, ईदर दिस इज मिसिंग और दिस इज मिसिंग और दिस इज मिसिंग. Because पूरे फॉर्मूला में only one thing is missing. You will be able to calculate it. See how it works. I have one question for you. A withdraws 20,000 per month on the 15th of every month, and his interest on drawing is 7,200. This amount is given. What is not given? Actually, total drawings भी मिल जाएगा. 20,000 वो हर मंथ के 15th को विड्रॉ कर रहा है. सो एज ऑफ दैट यू बी एबल टू गेट 20,000 into 12 करके टोटल ड्रॉइंग्स ऑल्सो. 15th डेट ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, आपको एवरेज पीरियड भी मिल जाएगा. व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो वी विल बेसिकली राइट दिस सेम फॉर्मूला फर्स्ट. Interest on drawings is equals to total drawings into rate upon 100 into average period upon 12. Interest on drawing का amount इस बार हमको दे दिया है 7,200 is equals to total drawings 20,000 mid of every month throughout the year करेगा. So partner total 2,40,000. 20,000 into 12. Total drawings 240 करेगा. Rate is missing, so we will write it as it is into average period. 15th of each month करेगा. So mid and monthly drawings we will take average period as 6 months. So 6 by 12. If you cut zeros, you cut this and this will be 12. So it will be 7,200 is equals to 1,200 into rate. Rate को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, 1,200 को यहाँ पे लेके जाओ. So 7,200 upon 1,200 is equals to rate. It will be 6. So rate of interest on drawings will be 6%. So MCQs will be like this, wherein you will be given with this amount. Either this is missing, or this will be missing, or this will be missing. Based on the question, use the same formula. जो भी missing है उसे रहने दो, बाकी की चीजें put on करो, आपको missing वाला आंसर लास्ट में मिल जाएगा. I hope even this is clear to you. In the next session, we will be going on with some of preparing profit and loss appropriation account, बहुत ही basic level से. And every time with new session, we will go one level higher. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon so that you remain updated with every session. So till the next session, stay tuned and goodbye.